हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रोडक्ट सेफ्टी का प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट सेफ्टी IATF के क्लॉज नंबर 4.4.1.2 में आता है, यानी 4412 में आता है, जो कि मैंडेटरी प्रोसीजर है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा ये प्रोडक्ट सेफ्टी का प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, इसकी क्या क्या इनपुट रिक्वायरमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इसके क्या क्या क्रिटिकल स्पेसिफिकेशंस हमको यूज़ करने होते हैं, उनका सिंबल्स क्या होता है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन देनी होती है या नहीं देनी होती। इसको बनाने का बिल्कुल आसान तरीका मैं बताऊंगा जिसको आप कभी नहीं भूलोगे। सो प्लीज़ लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। दोस्तों अगर आप डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद कुछ सालों तक जॉब नहीं कर पाते हैं तो आप हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद अपना करियर रीस्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। If you need to grow in your career and need to build up a smart career, you can join our documentation training center Hub of Knowledge Make. First, let you understand what is product safety. Product safety is the condition of product which is free from defect, design failures and minimum acceptance level of risk. And product safety is the ability of product to be safe for intended use. Now let's discuss product safety requirement. Review drawing specifications and legal requirement and control plan. Next one, updation of DFMEA. And next, identification of designated symbols. Next, special approval from customer for DFMEA, PFMEA / control plan. Next, training to operator. Next, define safety requirement in operating instructions. Next, define special control like SPC. Next, ECN / DCN for such characteristics. So friends, these are product safety requirement we have to consider for making product safety procedure. Product safety procedure control IATF clause number 4412. Purpose: to establish a procedure for product safety and to ensure that product safety requirements are taken into consideration at the time of development and during regular production. Scope क्या है? Applicable to all product where the safety requirement need to be taken into consideration. Responsibility किसकी होती है? MDT, Multidisciplinary Team. First, serial number. इसमें एक्टिविटीज़ क्या करेंगे? Product safety requirements are identified at the time of development through following inputs. Requirements specified in customer drawing during the development of PFMEA. जब भी हम प्रोडक्ट के PFMEA बनाएंगे तो कस्टमर की ड्राइंग को सबसे पहले रिव्यू करेंगे। इसका इनपुट क्या आएगा? इनपुट डॉक्यूमेंट जो रहेगा कस्टमर की ड्राइंग और PFMEA जो हमारा फॉर्मेट होगा। आउटपुट आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड इंजीनियरिंग। Serial number 2. Identified special characteristics are incorporated into process and product control documents and communicated to down the level through display and issue of documents. प्रोडक्ट की सेफ्टी से रिलेटेड जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होंगे उनको हमें कंट्रोल प्लान में, SOP में, WI में मेंशन करना पड़ेगा ताकि हम अपने ऑपरेटर तक यानी ग्राउंड लेवल तक उनको प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकें। कल करेक्टरिस्टिक्स मेंशन जो किए हुए हैं कंट्रोल प्लान में, WI में या SOP में, उनका सिंबल C होगा। C से हम उनको डिफाइन करेंगे। दीज आर दी क्रिटिकल करेक्टरिस्टिक्स दैट कंट्रीब्यूट फॉर द प्रोडक्ट सेफ्टी। दीज करेक्टरिस्टिक्स हैव टू कंट्रोल ड्यूरिंग प्रोसेस फॉर product safety. Input identified product safety characteristics. Output product and process control standard. And responsibility head engineering. Serial number 3. Where required customer are notified about the safety requirements, and if at all any specific test to be carried out, the same is carried out and reports are submitted to the customer as applicable. अगर प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए कुछ टेस्ट की ज़रूरत होती है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए, फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, तो उनको हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और उनके जो है रिपोर्ट तैयार करेंगे जो कि हम कस्टमर को सबमिट करनी होगी।
इनपुट डॉक्यूमेंट कौन सा रहेगा, कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान में सभी करेक्टरिस्टिक्स जो है मेंशन होते हैं, उनके क्या क्या रिलेटेड टेस्ट हैं वो भी लिखे होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी लिखी होती है, कौन सा टेस्ट कितने टाइम में करना है और कस्टमर को सबमिट करना है या नहीं करना है, ये भी कंट्रोल प्लान में लिखा रहता है। तो आउटपुट क्या निकलेगा, टेस्ट रिपोर्ट एंड सबमिशन ऑफ टेस्ट रिपोर्ट टू द कस्टमर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड QA/लैब इंचार्ज। सीरियल नंबर 4 कंट्रोल प्लान विद स्पेशल प्रोडक्ट and process characteristics are approved by plant head director if required by the customer. Control plan and FMEA is approved by the customer. So control plan and FMEA or as well as drawing, these critical documents should be approved from customer as well as plant head, quality head, or you can say director. Input control plan and approved control, output क्या रहेगा, approved control plan. Responsibility plant head and director. Serial number 5 escalation process. Any product safety failure identified in the line should be reported to quality head and looking at the seriousness it is communicated to the customer. अगर प्रोडक्शन के टाइम कोई भी एबनॉर्मलिटी या क्वालिटी डिफेक्ट आता है तो उसको क्वालिटी हेड को सबसे पहले इन्फॉर्म करना होगा। हमें अगर कस्टमर को इन्फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है तो ही हम उसको कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इनपुट प्रॉब्लम रिपोर्टेड इन लाइन, आउटपुट क्या रहेगा, रिपोर्टिंग टू द कंसर्न पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय क्वालिटी हेड। सीरियल नंबर 6 व्हेनेवर एनी चेंजेस इन प्रोसेस और प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अप्रूवल ऑफ चेंजेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कस्टमर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस इन द प्रोडक्शन is in line with procedure for change management. मेजर जो चेंजेस होंगे उनमें हम इनपुट को कंसिडर करेंगे लाइक ECN, और कस्टमर से रिलेटेड जो ECN होगा उसको भी हम कंसिडर करेंगे, और ECN को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ECN का प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करेंगे। आउटपुट कस्टमर अप्रूवल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड इंजीनियरिंग। पॉइंट नंबर 7 transfer of requirements to supplier. All the product safety requirements as applicable to the supplier is communicated through PO/email and compliance of the same is verified through supplier test reports, incoming inspection report and PPAP approval. पॉइंट नंबर 7 प्रोडक्ट की सेफ्टी से रिलेटेड जो जो रिक्वायरमेंट होगी कस्टमर सप्लायर को इन्फॉर्म करेगा थ्रू ईमेल और थ्रू purchase order. Later on, supplier will be verified or product safety requirement like in test report and PPAP documents. Input product safety requirement and output PO/email communication. Responsibility purchase in charge. Point number 8 traceability. Traceability of part is identified through unique lot number through procedure of for identification and traceability. अगर कोई चेंजेस आता है या कोई स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजेस है तो हम वहाँ पर लॉट को ट्रेसेबल करेंगे। उस ट्रेसेबिलिटी के लिए कोई यूनिक नंबर या यूनिक लॉट नंबर हम देंगे। और इनपुट पार्ट प्रोड्यूस्ड एंड आउटपुट लॉट ट्रेसेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन हेड। पॉइंट नंबर 9 past trivial data sheet during the development and as well as regular production. Whatever the difficulties faced, all are captured in past trivial data sheet and used for future development and as well in regular improvement activities. प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए जब भी हम PFME बनाएंगे वहाँ हम अपनी जो है पास्ट ट्रेवल हिस्ट्री का यूज़ करेंगे। पास्ट ट्रेवल हिस्ट्री में जो है कस्टमर कंप्लेंट, डिज़ाइन से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड फेलियर्स लिखे होंगे। उस समय हमने क्या क्या करेक्टिव एक्शन लिए थे वो भी वहाँ मेंशन होते हैं। सेम करेक्टिव एक्शंस वी हैव टू अप्लाई फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू प्रिवेंट द सेम काइंड ऑफ फेलियर्स। इनपुट पास्ट प्रॉब्लम्स एंड आउटपुट लेसन लर्न यूज्ड फॉर रेगुलर प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड इंजीनियरिंग, हेड QA। हेयर अमेंडमेंट, रिवीजन नंबर, डेट, डिटेल्स ऑफ अमेंडमेंट। जो भी रिवीजन इस प्रोसीजर में होगा वहाँ पर रिवीजन नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे और रिवीजन की डिटेल डालेंगे।
सो अगर आपको स्मार्ट स्किल डेवलप करके करियर में ग्रो करना है तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारा ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करें। आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम आवर ट्रेनिंग सेंटर, कैंडिडेट कैन बिल्ड अप हिज स्मार्ट स्किल्स फॉर क्रैकिंग इंटरव्यू एंड कैन गेट ए गुड जॉब in good organization. The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career. Friends, if you watching ready-made paid videos, then no use for it, because by watching ready-made paid video doubts are not clear, so don't waste time and money. So please join our live classes online as well as offline. And this is the procedure for making product safety. I hope you guys are understood. Thank you.